Good morning, everyone. Good morning. So, kids, how are you all? We are How's your preparation going on? good. Come in. You are doing well? Yes. Huh? Okay, so kids, I am here with our another model paper. This is sample paper 4. Okay. So let's we do the desk work. Model test paper 4. Let's we start. Okay, so take it out. Check your answers. Okay, you are already done it. So check your answer. Okay. Yes. So this is for your practice. First one from observation and recording. So your question number 1 is, how does fish get its food? How does fish get its food? Yes. Yes, by swallowing. Okay. Not by picking, not by sucking, not by chewing. It's swallowing its food. Okay. Clear? Next one. Mosquitoes are breeding due to accumulation of dirty water around the house. Which disease is likely to spread? Have you understood the question? Question समझ आया? So your question is, mosquitoes are breeding due to accumulation of dirty water. Means जो dirty waters होते हैं वहां पर जो mosquitoes होते हैं इनका नंबर इंक्रीज होता है. इंक्रीज होता है ना डर्टी वाटर में. दे ब्रीडिंग, वो अपना ब्रीडिंग करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं. समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो व्हाट इज आंसर? मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय which mosquito? Yes, female anopheles mosquito bite. Okay, अब listen. Your option is jaundice, polio or cholera. These are the disease which is caused by, किससे caused होते हैं? Yes, contaminated food and water. If you drink or if you eat contaminated drink, अगर आप contaminated food eat करते हैं और if you drink contaminated water, then you cause jaundice, polio, cholera. Okay, these diseases are not caused by mosquito bite. Clear? Understood all the options? Now next one is question number 3. Nowadays nuclear families are increasing. Nuclear families means small families. Okay, तो आजकल जो डे बाय डे नाउअडेज आजकल क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज है इनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है. ज्यादातर लोग जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना प्रीफर कर रहे हैं. समझ आ रहा है? So give any 3 reason for the formation of nuclear families. Why there is most of the number increasing in nuclear families? क्यों? क्योंकि ओल्डन टाइम्स में लोग रहते थे जॉइंट फैमिली, बट आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में क्यों इंक्रीज हो रहा है? What are the reasons? So you have to write the reasons. So first one is for higher education. अगर लोग हायर एजुकेशन करने जाते हैं, so they shifted from one place to another. So this is the reason for the formation of nuclear family. Next one, for better livelihood. Yes, अगर लोगों को अच्छा जीवन जीना है, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, so they move from one place to another. So most of the people move from villages to city. So this is another reason. Next is for job opportunities. So किसी का placement हो जाता है, they are shifted from
वन प्लेस टू अनदर, दिस इज द रीजन। यस, अब वो वहां जॉब करेंगे तो ऑब्वियसली उनको वहीं रहना पड़ेगा, उनकी फैमिली को भी वहीं रहना पड़ेगा, तो दिस इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। क्लियर? क्लियर दिया? कीप योर स्माइलिंग फेस। नाउ नेक्स्ट इज communication. Next section is check your answers, kids. The digestion of food started from here only. Yes, the digestion of food started from. Yes, you all know this is from the chapter number. Yes. So in this question number 4, there are questions related to the chapter number 14. Clear? Next one. Next question number 5. Write the names of any 3 national parks in Rajasthan. You have to write the name of national parks here, but we also can write the district name also. ठीक है, आप इसको भी साथ के साथ लर्न करेंगे। क्लियर? So first is Desert Park. Desert National Park is situated in Jaisalmer. Next one, Sariska National Park. It is situated in. Very nice. Next one is. It is situated in. Very nice. So you have to write the name of National Park of Rajasthan. In your book, there are total 5 or 6 national parks are given in your book. You can write any of them. Clear? Is it clear? Yes, ma'am. Now next one. Question number 6 is dams are built at many places. Write any 2 purpose of building dams. What are the purpose? Why dams are constructed? This is the question in your books. आपके बुक में वाला क्वेश्चन है ना, why dams are constructed? You can write the answer same. Question only question is same, but answer is same. Why dams are constructed? First is yes, to generate electricity. Very good. To provide drinking water, to generate. Very good. And to irrigate the land. Yes. Clear. Is it done? Next is question number. Next question is question number 6 ka second. This one is what type of disease is cerebral palsy? What is cerebral palsy? Listen, listen. This is from chapter number 3. We are special. Okay, 4 is let's clean together. Yes, this is from chapter number 3. We are special. है ना? उस वाले चैप्टर में से है, तो cerebral palsy is a disease. It is a disease. क्यों होती है? Because the brain of the patient is not developed. इसकी वजह से होती है ना, और all organs are not doing the work because their brain is not developed. उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता, तो वो चीजों को होल्ड नहीं कर पाते, उनकी ऑर्गन्स जो है वो अच्छी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। वो आपको जो पेशेंट है वो दिखने में तो बिल्कुल आपको ठीक लगेगा, बट देयर ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। ओके, so listen here. Cerebral palsy is a disease in which all the parts of the body such as hands and legs are fully developed. Legs अच्छे से developed है, hand अच्छे से developed है, but do not work properly. But जो भी organs होते हैं वो अच्छे से work नहीं कर पाते, because the brain of the person is not developed. So this is the disease.
which we call cerebral palsy. Clear? Is it easy? Now next is Nandini, have you understood? क्वेश्चन समझ आ रहा है? आंसर. Now next is if the trash laying around, trash means very good, got it, litter. If the trash laying around your school or home is not clean continuously, आपके सराउंडिंग्स में, आपके स्कूल के आसपास, आपके घर के आसपास अगर ट्रैश कंटिन्यूअसली क्लीन नहीं हो रहा है ना, स्वीपर नहीं आ रहे हैं, क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं आपके सराउंडिंग में, कितने टाइम? फॉर अ 1 वीक से आपके सराउंडिंग में क्लीनिंगनेस हुई नहीं है, तो देन व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? यस यस सो अगर ट्रैश आपके नियर बाय होगा तो ऑब्वियसली वो प्लेस कैसा होगा? वहां से फाउल स्मेल आएगा, साथ ही वो किसका? मॉस्किटोज वहां पे बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, क्योंकि जो डर्टी प्लेसेस होते हैं वो किसका प्लेस हो जाता है? मॉस्किटोज का, और उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा डिजीज होने लग जाती है। मॉस्किटो बाइट करेंगे तो आपको डिजीज होगा ना, जस्ट लाइक डेंगू, मलेरिया। यस यस, सो लेट्स चेक द आंसर. इफ द ट्रैश लेइंग अराउंड और स्कूल or home is not clean continuously for a 1 week, then first point is it gives out foul smell. वो उस प्लेस पे, उस एरिया में आप जाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि उस एरिया में काफी ज्यादा क्या आने लग जाएगी? बहुत ज्यादा स्मेल आने लग जाएगी, है ना. नेक्स्ट इज इट बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड डिजीज. बहुत ज्यादा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा, और उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा डिजीज होने लग जाएंगे. क्लियर? क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज what are the advantages of yoga? This is from chapter number 5. Chapter number? Yes. What is the name of chapter number 5? Let's play game. तो गेम्स वाले चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका. तो इसमें योगा के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट वन इज इट हेल्प अस रिमेन हेल्दी एंड फिट. आप लोग योगा करोगे तो आप कैसे रहोगे? हेल्दी एंड फिट. इट मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर बॉडी मसल्स. ओके, क्लियर? एनी ऑफ अनदर रीजन you can share? It keeps us fresh and active. And yes, Anuja? Very good. It helpful for our spiritual development, mental development. Very good, Anuja. Sit. Now next one, classification. Our next section is classification. How long after eating does one start feeling weak? Yes, means when we do feel hungry, है ना, हम हंग्री फील करेंगे. अब जब भी आप लिसन बेटा देखो, फूड गिव्स अस एनर्जी, है ना. अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगा, देन वी फील वेरी वीक. हमें कैसा होगा? हम वीक फील करेंगे, वी आर नॉट एबल टू डूइंग द वर्क, है ना. और साथ में आपको कंसंट्रेशन भी नहीं होगा, आप वीक फील करोगे. तो कितने टाइम्स में होता है ये सब? 3 to 4 आवर्स में. इतने टाइम्स के बाद आप कितनी वीक फील करने लग जाते हो, क्योंकि आपने किसी टाइप का कोई एनर्जी नहीं लिया. इसलिए हम हमेशा जितने भी मील्स होते हैं वो 3 to 4 आवर्स में लेते हैं, जस्ट लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. क्लियर? नेक्स्ट इज गिवन पिक्चर इज रिलेटेड विथ. अब आपको नेक्स्ट जो पिक्चर दे रखा है आपको आइडेंटिफाई करना है. दिस पिक्चर इज रिलेटेड फ्रॉम, देखो
ये जो पिक्चर है आपकी, जस्ट एक है बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट आपकी हेल्थी ईटिंग हैबिट में आती है। वी शुड ईट बैलेंस डाइट, एक तरह का बैलेंस डाइट दिख रहा है आपको यहाँ पर। यस, तो ये कोई नॉर्मल डाइट है या डिलीशियस फूड है, मार्केट फूड है, या हेल्थी ईटिंग हैबिट है? Yes, because this is the picture of a balanced diet and it is include in healthy eating habits. Clear? We should eat balanced diet. This is our good healthy eating habit. Clear? Next, 9 number, match column A with B. It's very easy. ये तो easy है आप लोगों के लिए. Apple, carrot, bajra, root seed and fruit. Okay, so apple is a, yes, it's grown from its seed. Sorry, seed से grow होता है, but apple is a fruit. Carrot is a root. किसी भी plant का carrot एक root होता है. Next is bajra. Bajra is a seed. Clear? Now next is number 10. If the aquatic plants that are found in water, aquatic plant that is found in water, obviously aquatic plants grown in water, yes, so taken out water, अगर हम इनको water से निकाल लें, okay, what will happen to them? उनके साथ क्या होगा अगर हम aquatic plants को, या है ना, उनको water से बाहर निकाल लें, तो what will happen, क्या होगा आगे उनके साथ? So you have to write only 3 points. So first one lesson बेटा देखो, aquatic plants are not adapted to live on land. तो जितने भी उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस अकॉर्डिंगली वो वाटर में ही सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स की लीव्स ब्रॉड होती है, वैक्स कोटिंग होती है. ओके, सो दे आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, नॉट ऑन लैंड. सेकेंड थिंग, they will die if they taken out from water. Aquatic plants को अगर हम water से बाहर निकालेंगे, they will die because they are not adapted to live on land. Next, necessary conditions that are required for aquatic plants to survive are not found on land. तो जो भी necessary conditions उनको चाहिए वो उनको land पर नहीं मिलती है, so they cannot survive on land. Clear? So these are the reasons. Clear? Manas? Clear? Arman? Okay. Now next one. Number 11. Fill in the blanks with the words given below. So यहाँ आपको already देखो इस टाइप के आपको ऑप्शंस मिलेंगे. You have to write these options at their correct place. Clear? First one is dash plant spread very quickly. Which plant spread very quickly? Yes, Jalkumbhi. Jalkumbhi spread very quickly on the water surface. Next, a V-like structure installed over the shallow well or boundary is called? Very nice. It's called Rahat. And next one is we cannot dash sugar separately in water. Listen. But this water becomes sweet in taste. Yes, your answer is correct. We cannot see sugar. देखो हम जब water के अंदर dissolve करते हैं sugar को, तो वो dissolve हो जाती है, वहां आपको separately अलग से थोड़ा दिखती है sugar, नहीं दिखता ना, वो उसमें dissolve हो गई है. और water कैसा होता है आपको? Sweet दिखता है. Sorry, taste में sweet होता है. Okay, now next is question number. Check your answers also. 12 is write 3 contributions of Dr. B.R. Ambedkar in favor of nation. This is from chapter number 16. Okay, so you have to write about the Vikram Sarabhai. You have to learn about the Vikram Sarabhai and Homi Jahangir Bhabha, Pandit Madan Mohan Malviya and B.R. Ambedkar. We learn about these great personality
in your chapter number 15. So you have to learn about them. Okay, in a short note, you have to learn all about them. इन सब के बारे में आपको लर्न होना चाहिए. Clear? What are the name of great personalities? Vikram Sarabhai, Homi Jahangir Bhabha, Pandit Madan Mohan Malviya and Dr. B.R. Ambedkar. इनमें से किसी भी एक के बारे में आपके एग्जाम्स में आएगा. ओके, शॉर्ट नोट आ सकता है, पॉइंट्स आ सकता है, कुछ भी. देन यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज, listen, the three contribution of Dr. B.R. Ambedkar is, first one is, he fought against injustice and social discrimination. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जितने भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे, ठीक है, जैसे उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए, इनजस्टिस के लिए काफी ज्यादा उन्होंने फाइट किया था, है ना. ही जॉइंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस के जो मूवमेंट्स थे उनके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, है ना. The Constitution of India was prepared under his presidentship. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर में बना है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. यू हैव टू राइट दीज 3 इजी पॉइंट. क्लियर? डन? यू कैन चेक योर आंसर. अगर आपको मेरे पॉइंट ज्यादा इजी लग रहे हैं, यू कैन राइट इट. आप इसको भी राइट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन, सेकंड ऑफ 12 का सेकंड इज, व्हाट आर द मेन फूड डिशेज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? वी लिव इन जयपुर. यस, जयपुर इज इन राजस्थान स्टेट. एंड व्हाट आर द फेमस फूड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? यस, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी और कचौरी. तो आप कोई सा भी राइट कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के फेमस फूड आइटम्स है. क्लियर? नेक्स्ट नंबर 13. What should we do to help a person injured in a road accident? Write any 4 points. Okay, if you see a person injured in a road accident, what should you do? आप क्या करोगे? हाँ, yes, first thing is, सबसे पहले आपको किसको कॉल करना है? Yes, so we should call for an ambulance. Second one, we should give first aid to the injured person. Third is, we should and not panic at the side of road accident. Okay, आपको कामली रहना है, बिल्कुल काम रहना है, शांत रहना है. आप खुद पैनिक हो जाओ तो पब्लिक इंजर्ड पेपर को छोड़ के आपको देखने लग जाए. तो आपको बिल्कुल काम रहना है, शांत रहना है और पैनिक नहीं होना ज्यादा, क्योंकि कई ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कि एक्सीडेंट देके वॉमिटिंग करने लग जाते हैं, इतने पैनिक हो जाते हैं काफी ज्यादा. तो वो नहीं आप लोगों को करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है ना, उनकी हेल्प करनी है इंजर्ड पर्सन की. एंड लास्ट 4th पॉइंट इज, yes, with injured person until the ambulance reaches. तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक आपको इंजर्ड पर्सन के साथ रहना है, उसको शिफ्ट करवाना हॉस्पिटल तक. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज, what measure would you adopt for the conservation of petrol and, yes, it's very easy question. पेट्रोल और डीजल के कंजर्वेशन के लिए, मतलब इनको सेव करने के लिए आप क्या करोगे? पेट्रोल और डीजल आपको कैसे सेव करना है? कैसे सेव करोगे? दीज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में है ना, तो आपको उसको सेव करना है फॉर योर फ्यूचर जनरेशन. यस, लेट्स चेक इट्स पॉइंट्स.
Yes, first is yes, we should walk or ride a bicycle for a short distance. अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो आप या तो वॉक करके जा सकते हो या फिर you can use bicycle because there is no fuel required in bicycle. So you should use bicycle for the short distance and we should keep our vehicle yes in good condition. How we keep our vehicle in a good condition? By servicing it time to time. टाइम टू टाइम आपको उसकी सर्विस करती रहनी है, उसको मेंटेन करके चलना है. एंड एनी अदर रीजन हाउ शुड बी कंजर्व पेट्रोल? यस अग्रिमा. यस डोंट ड्राइव व्हीकल अग्रेसिवली ड्राइव करने से क्या होगा? फ्यूल ज्यादा बर्न होगा, है ना, और आप फ्यूल आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. ओके, सिट डाउन. नाउ नेक्स्ट वन इज 14. दिस इज क्वेश्चनिंग सेक्शन. अब आपको यहाँ पर 14, 15, 16 इन तीनों में ही क्या करना है? क्वेश्चन फ्रेम करने हैं. समझ में आ गया? आपका 15 तो आएगा आपके पिक्चर से रिलेटेड एंड 14 और 16 आप में वहां कोई पिक्चर नहीं आएगा. फर्स्ट इज मेक 3 क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओल्ड पॉन्ड. पॉन्ड से रिलेटेड आ सकता है, वेल से रिलेटेड आ सकता है, ट्यूबवेल से रिलेटेड आ सकता है, टैप वेल से रिलेटेड आता है. ठीक है, किसी से भी रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा. समझ आ रहा है? पॉन्ड, वेल, टैप वेल, ट्यूबवेल, any of resources of water. Clear? So you can frame the questions. Are you able to frame the question? First one is how old is pond? ठीक है, ये pond कितना पुराना है? अगर step well से related आता है then you can write how old is this step well. क्वेश्चन आपका सेम ही होगा, बस चेंज करते रहो. यहाँ पर पॉन्ड है तो पॉन्ड, वेल है तो वेल, स्टेप वेल है तो स्टेप वेल. क्लियर? सेकंड, इज दिस पॉन्ड वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड व्हाई पॉन्ड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? क्लियर? तो दिस इज रिलेटेड फ्रॉम द पॉन्ड. अब अगर वेल से आ जाएगा तो आप क्या क्वेश्चन बनाओगे? नाउ टेल मी. Tell me 3 questions related to the old well in your village. Yes, how old is this well and what is the shape of well? Or one more. Very good. Is the water of this well is safe for drinking? Very good. You can write, you can frame the question according to the question. Clear? Now next is 15. Look at the following picture and construct any 3 क्वेश्चन. तो अब आपको पहले ये आइडेंटिफाई जरूर करना पड़ेगा कि पिक्चर कौन सा है. दिस पिक्चर इज ऑफ आइकॉर्निया प्लांट, है ना. इट स्प्रेड इन वाटर सरफेस. तो इससे रिलेटेड आप क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो? देखिए, व्हाट प्लांट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इट्स वेरी कॉमन. यू कैन राइट. अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्लांट का अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आप सेम क्वेश्चन सब में फ्रेम कर सकते हैं. ओके, विच प्लांट डू यू सी इन द पिक्चर? आइडेंटिफाई द पिक्चर. You can write frame questions like this. Second, what will happen if these plant cover the entire pond? क्या होगा अगर इस प्लांट ने पूरा सरफेस जो है पॉन्ड का कवर कर लिया? सेकंड क्वेश्चन. थर्ड, what difficulty would rise for other aquatic plants and animals around it? इसके नियर बाय में जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स है तो इस प्लांट की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? क्लियर? नेक्स्ट इज
Yes, dal, pulses spoil more quickly than dry vegetables. अगर हम कंपेयर करें दाल को ड्राई वेजिटेबल से तो दाल जल्दी खराब हो जाती है, स्पॉइल अर्ली. सो व्हाट आर द रीजंस एंड फ्रेम एनी 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं ना. फर्स्ट इज व्हाई पल्सेस स्पॉइल मोर क्विकली देन ड्राई वेजिटेबल्स, क्यों हो रही है फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इज हाउ विल यू नो दैट द दाल हैव गॉन बैड, हमें कैसे पता चलेगा कि दाल स्पॉइल हो गई है. आपने उसको स्मेल किया, टेस्ट किया, कैसे आपको पता चला. सेकंड, व्हाई डू ड्राई वेजिटेबल नॉट स्पॉइल, और ड्राई वेजिटेबल स्पॉइल क्यों नहीं हुई है, उसका रीजन. तो यू कैन फ्रेम क्वेश्चन like this and listen beta. You have to, if question related to WH or how, then you put the question mark. समझ में आ रहा है. क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है. एंड राइट द नंबर हियर 1 2 3. आप लोग क्या कर दो, नंबर्स नहीं राइट करते, बस आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. It's very important. If you frame the question, put the question mark. If it is started from WH, just like what, which, why, or how, when, then you put the question mark. Don't forget to put question mark. Clear? कोई भी ऐसा नहीं बच्चा नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया है. Now next is, what is the effect of rain on the crops? रेन के क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट होता है. अगर रेन ज्यादा हो रही है तो क्या इफेक्ट होगा, कम हो रही है तो क्या इफेक्ट होगा. समझ आ रहा है. yes, so if there is good rainfall, अगर रेनफॉल अच्छा हुआ, ऑन द टाइम हुआ, प्रॉपर हुआ, देन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस. समझ में आ रहा है. हाँ, हैव यू अंडरस्टूड. yes, so if rainfall is good, on time and proper, the production increase, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा, आपके क्रॉप्स अच्छी हो रही है. But the rainfall, if there is no rainfall or heavy rainfall, means अगर बहुत मतलब या तो रेन हुई ही नहीं है या बहुत ज्यादा रेन हो गई है, तो आपकी जो क्रॉप्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इस टाइप के इफेक्ट्स आपके क्रॉप्स पे पढ़ सकते हैं. सो अंडरस्टूड. व्हाट इज द आंसर. लिसन, इफ देयर इज गुड रेनफॉल ऑन टाइम, अगर रेनफॉल टाइम से अच्छा हुआ है, द क्रॉप इज गुड. समझ में आ रही है. अंडरस्टूड. गणेश मीन्स अच्छा रेनफॉल होगा, टाइम से होगा तो आपकी क्रॉप्स अच्छी होगी. एंड द प्रोडक्शन इंक्रीज, तो आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. समटाइम इट डज नॉट रेन टाइमली और देयर इज हैवी रेनफॉल, और कई बार क्या होता है, रेन होता ही नहीं है या फिर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है. मीन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रेनफॉल हो गया तो क्या होगा, इट हैज अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स. क्रॉप्स के क्या हो जाएंगे, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट मतलब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या इंसेक्ट्स लग जाएंगे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो वो यूजफुल है क्या आपके लिए क्रॉप्स, नहीं है ना. सो एंड द प्रोडक्शन डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, हैव यू अंडरस्टूड ना. तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम होने से क्या होता है बेटा, रेट्स ज्यादा हो जाती है. फिर उस चीज की डिमांड अगर होती है ज्यादा, उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो वो चीज की क्या हो जाएगा, प्राइस ज्यादा होने लग जाती है ना. तो फार्मर्स के लिए भी क्या है, अगर उनकी क्रॉप्स खराब हो गई तो फार्मर्स के लिए भी क्या है, उसके लिए मनी भी नहीं आ पाएगा उसके पास. उसने जितना उस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जितनी मनी लगाई है, टाइम दिया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा, है ना. तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो रेन की वजह से फार्मर की क्रॉप्स पे पड़ते हैं. समझ आ रहा है. नेक्स्ट इज नंबर 18. You can draw the solar system. So make a diagram of Earth.
solar system. This is from chapter number लास्ट चैप्टर 25 में से रिलेटेड है. यहाँ पे आपको अब कॉन्स्टलेशन का पिक्चर ड्रॉ करने को आ सकता है ना. सोलर सिस्टम का कोई वन प्लैनेट. ओके, क्लियर. So this is the diagram of solar system. It's very easy. You can draw it. Do the practice of the for making the diagram. Okay. Do the regular practice. Next is, you know now how many planets in our solar system? How many planets? Yes, Ishika. 8. How many inner planets are there? Inner planets कितने? 4 inner and 4 outer planets है बेटा. And listen बेटा, मे बी पॉसिबल कि आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम का डायग्राम दे दिया, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. जस्ट लाइक विच इज द फार्थेस्ट प्लैनेट, which is the nearest planet, which is the hottest planet, which planet has ring around it. Okay, so prepare the question related to the solar system also. Clear? Understood, Jishan? Next 19 number. Why would there be less damage to wooden houses at the time of earthquake and storm? You know now what is the answer of this question? Yes, listen. The wooden houses are very light and do not get easily damaged. Wooden houses जो होते हैं ये कैसे होते हैं? Very light, मतलब इनका वेट कैसा होता है? थोड़ा सा कम होता है. अगर हम ब्रिक सीमेंट इनके हाउसेस की बात करें तो इनका वेट थोड़ा ज्यादा होगा और इनका वेट कैसा होता है? दे आर वेरी लाइट होते हैं एंड डू नॉट गेट इजीली डैमेज बाय वाटर. और वाटर से वो जल्दी से क्या होता है? डैमेज भी नहीं हो सकते हैं. सो देयर विल बी लेस डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड स्टॉर्म. देखो, अगर अर्थक्वेक आएगा और वुडन हाउसेज है, अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं तो आपको कम इंजरी होगी. समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? अगर हाउसेज आपके वुडन के बने तो वुडन हाउसेज लाइट वेटेड है. अब आप सोचो, ब्रिक सीमेंट के हाउसेज अगर कोलैप्स होते हैं, गिरते हैं अर्थक्वेक की ड्यूरिंग, तो हम लोग उसके नीचे दब जाएंगे. वी बरीड अंडर दीज टाइप हाउसेज. तो अगर ये इस टाइप के हाउसेज हैवी होते हैं तो आपकी हेड इंजरीज हो सकते हैं, आपकी लेग्स इंजरीज हो सकते हैं. बट वुडन हाउसेज वेरी लाइट वेटेड, तो अर्थक्वेक आएगा तो आपको इंजरी नहीं होगी, कम होगी भी तो कम होगी. समझ में आ रहा है? क्योंकि जो हैवी होंगे तो हम लोग दब जाएंगे. अब दब गए तो आप लोग ब्रीथ नहीं कर पाओगे. तो हम कई बार क्या मोस्टली टाइम क्या होता है, जो भी लोग दब जाते हैं या तो वो डाई हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं. समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो वुडन हाउसेज होते हैं वो उनकी वजह से कम डैमेज होता है. समझ में आ गया? चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, उस टाइम पे अगर इस टाइप के हाउसेज बने हुए हैं तो वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि काफी लाइट वेटेड होते हैं और गेट इजीली डैमेज बाय नॉट गेट इजीली डैमेज बाय वाटर. क्लियर? समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आया था? अब समझ में आ गया आपको आंसर? You want to know what is the answer of this question? Okay. Now write about losses caused by earthquake. अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या लॉसेस हो जाएंगे? अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर. अगर इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो बेटा क्या क्या लॉसेस होंगे? ऑब्वियसली बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगी, फर्स्ट थिंग, है ना. क्योंकि आपको पता है ना what is the intensity when there is a major losses in earthquake. What are the intensity? More than कितनी इंटेंसिटी पे अर्थक्वेक से डैमेज होता है? मोर देन 5. मोर देन 5 है ना. और अगर 7 इंटेंसिटी पे अगर देयर इज अ ह्यूज डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा. ठीक है ना.
तो 5 से ज्यादा ही अगर इस 5 की इंटेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो आपके अर्थक्वेक से क्या क्या होगा, देखो बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स आर कन्वर्ट इनटू हीप्स ऑफ डेब्रिस। क्या हो जाएंगे? वो ढेर बन जाएंगे मलबों के, है ना। जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी तो जितना मटेरियल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, सारा मलबा बन जाएगा। एंड थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ। काफी लोगों की लाइफ जो है वो डाई हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो उनका भी जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, दे लॉस देयर लाइफ। क्लियर? You can write 2 points this one also in a flood. फ्लड में भी आप ये वाला पॉइंट तो लिख ही सकते हो, क्योंकि फ्लड आता है ना बेटा तब बिल्डिंग तो कहीं गिरेगी नहीं ना, वो तो पानी में बह के चले जाएंगे। बट थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ, लाइफ स्टॉक, ये सब क्या हो जाए फ्लड में भी आप ये वाला रीजन लिख सकते हो। अगर फ्लड आता है तो क्या लॉसेस हो सकते हैं। क्लियर? नाउ टेल मी which instrument is used to measure the intensity of an earthquake? Loudly? Yes, Richter scale. Now next is number 20, concern towards justice and equality. Section में से question number 20 is yes, platform ticket are needed. Why we needed platform ticket? प्लेटफॉर्म मतलब समझ रहे हो ना, कोई जर्नी का टिकट नहीं है ये, प्लेटफॉर्म टिकट। कहाँ हम परचेज करते हैं प्लेटफॉर्म टिकट? यस, रेलवे स्टेशन। व्हाई डू वी नीड इट? क्यों नीड होती है? आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन पे आपको जरूरत होती है, बट व्हाई इट इज नेसेसरी टू बाय प्लेटफॉर्म टिकट? हम्म, नहीं खरीदे ना, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, इट इज मस्ट ना, इट इज मस्ट, वी हैव टू बाय प्लेटफॉर्म टिकट, बट व्हाई? क्यों? एनीवन एल्स? देखो बेटा, प्लेटफॉर्म टिकट से जो मनी अर्न होती है ना, हैव द गवर्नमेंट टू मेंटेन द प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए वहां जो स्वीपर्स वगैरह लगे हैं, जो क्लीनिंग कर रहे हैं रेलवे स्टेशन की, तो जो भी मेंटेनेंस है उसके लिए गवर्नमेंट को मनी चाहिए। तो वो मनी प्लेटफॉर्म टिकट से भी वो लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं ना। तो प्लेटफॉर्म मेंटेन रहे उसके लिए भी वो मनी क्या होती है, नीडेड होती है। सो और हर कोई एंट्रेंस नहीं कर सके। अगर अगर सारे ही पीपल विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट एंट्री करेंगे तो क्या हो सकता है, कोई भी लोग आकर के जा सकता है, हो सकता है टेररिस्ट ही आके चले जाए, कुछ भी हो जाए। तो एक तो चेकिंग बहुत जरूरी है वहां पे। जब हम जाते हैं प्लेटफॉर्म टिकट से, तो आपको कोई ऐसी चीजें दिख जाती है जिसका कोई ऑनर नहीं है, तो आपको उसको भी टच नहीं करना है, तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना होता है रेलवे पुलिस को। तो से बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है। प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म, और इफ यू नॉट परचेज इट एंड यू फाउंड विदाउट टिकट, देन यू गो टू द जेल। ओके, तो आपको जेल हो जाएगा सीरियसली, या फिर क्या लगेगा आपके पास, पेनल्टी लगेगा, है ना। तो ये सब नहीं करना है ना, इट्स रूल्स आर रूल्स एंड वी हैव टू फॉलो इट। ये हमारे सारे क्या है, रूल्स है और आपको फॉलो करने हैं। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ सिटीजन। यस, वी आर द सिटीजन। हम सिटीजन है ना, अच्छे सिटीजन हैं। एक गुड सिटीजन की यही तो क्वालिटी है, देन दे फॉलो द रूल्स। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप अच्छे सिटीजन बनोगे। ओके, एंड हेल्प द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की हेल्प करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 2 types of fuel and 3 states of India where दे आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको नीचे टेबल दे रखी है। फर्स्ट सेक्शन आपका है नेम ऑफ फ्यूल, फ्यूल का नेम लिखना है, एंड वेयर इट इज फाउंड, नेम द स्टेट, आपको स्टेट्स के नेम लिखने, कहाँ कहाँ आपको वो फ्यूल मिल रहा है। समझ आ रहा है? सो फर्स्ट है यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम।
तो ये फ्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो पेट्रोलियम से आपको काफी सारे फ्यूल्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक जब ये रिफाइन होता है ना, तो अब क्या क्या मिलता है? फ्यूल 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 नेम, फ्यूल इज वैसलीन फ्यूल। फ्यूल क्या क्या मिलते हैं? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इस टाइप के फ्यूल्स मिलते हैं। हाँ, एलपीजी। तो इस टाइप के फ्यूल्स आपको मिल रहे हैं ना, तो मैं फ्यूल्स की नहीं पूछ रही हूँ बेटा। यस, तो पेट्रोलियम और कोल है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको? देखो बेटा, राजस्थान में दोनों मिलते हैं, है ना। कोल भी है और पेट्रोलियम भी है, राजस्थान में दोनों मिलते हैं। तो इट्स वेरी इजी, राइट द नेम ऑफ राजस्थान, इट इज द स्टेट ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज गुजरात, गुजरात, कोल गुजरात में भी मिल रहा है और पेट्रोलियम गुजरात में भी मिल रहा है, राजस्थान में भी मिल रहा है। तो ये दोनों तो काफी इजी है ना, दोनों स्टेट इजीली लर्न करने, दोनों कॉमन है। एंड थर्ड इज बिहार, असम, यू कैन लर्न एनी ऑफ how many just like a 4-5 states name are there in your book, you can write any of 3, but I think we have to learn common names, common state name, हम कॉमन लर्न कर लें ताकि हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। समझ आ रहा है अनुजा जी? कॉमन नेम याद रखो ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो कि हम भाई राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इसमें कोल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज सॉरी नंबर 22, respect and appreciate each other's work and qualities. First is 22, which of the following is a petroleum product? आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम से क्या क्या बनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है। क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पेट्रोलियम से? नहीं होती है, बट हम उसको यूज तो करते हैं, यूज तो करते हैं, पता है ना आपको? नहीं, लेकिन जनरेट नहीं होती है ना, बनती नहीं है उससे। बट आपको ये पता होगा, ये जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं, है ना, उसके अंदर डीजल का यूज होता है, ये पता है? हाँ, तो तब फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट यहाँ आपको पूछा कि पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपका वैसलीन हो गया है, वैक्स हो गया है, पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है, सीएनजी हो गया है, आपको ये नेम लर्न होनी चाहिए, कैरोसिन हो गया है। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोल, कोल तो है ही नहीं ऑब्वियसली कोल तो है नहीं ना। एंड वुड, क्या वुड आपको पेट्रोलियम से मिलता है? प्लांट से मिलता है भाई, ये तो हमें। कोल, कोल हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता, कैसे मिलता है? हाउ डू वी गेट इट? हाउ डू वी गेट कोल? when the thousands of plants, animals buried under the ground and there is a lots of pressure and high temperature, coal formed। काफी, और इसको बनने में काफी टाइम लगता है, चाहे कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, इनको बनने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? रिन्यूएबल कौन से हैं? जो रेगुलर बन सकते हैं, जैसे सन की लाइट रेगुलर आती है ना। और विंड मिल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, तो ये रिन्यूएबल है। बट कोल और पेट्रोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये रेगुलर हमें नहीं मिल सकते, हम इनको रेगुलर थोड़ा ना बना सकते हैं, इनको बनने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है, तब जाके ये बनते हैं। सो आंसर इज वैसलीन। नाउ 23, अब इसके टू सेक्शन, टू है, 1 और 2। 23 में दो क्वेश्चन आएंगे, 1 एंड 2। फर्स्ट इज राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी फोर्स। ठीक है, अब आपको, आपने जो चैप्टर नंबर 17 है, सॉरी दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 23, यस। तो फोर्ट से रिलेटेड जितने भी हमने फोर्ट्स के बारे में पढ़े हैं, चित्तौड़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, in this chapter, so you have to learn about the forts. So this question is related from any ancient
मॉन्यूमेंट, किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में आपको लिखना है तो एटलीस्ट आपको कम से कम 2 या 3 फोर्ट्स के बारे में तो लर्न होना ही चाहिए ना। एंशिएंट स्ट्रक्चर आ गया अगर इसकी जगह तो भी आप ये आंसर राइट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो यहाँ मैंने लिखा है जैगर्ड फोर्ट के बारे में। ओके, इट इज सिचुएटेड इन, हाँ, यस, सो यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ आपको इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। आई विजिटेड जैगर फोर्ट विथ माई फैमिली लास्ट संडे एंड इट इज सिचुएटेड इन जयपुर। तो आप जिस भी फोर्ट के बारे में लिख रहे हो आपको ये बताना है कि वो कहाँ सिचुएटेड है। सेकेंड, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा मानसिंह फर्स्ट। तो इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था जयगढ़ फोर्ट को? महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने। फोर्थ पॉइंट इज लेटर, लेटर में बाद में मिर्जा राजा जयसिंह एंड सवाई जयसिंह चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फोर्ट। उन्होंने क्या किया, उसको रिनोवेट करवाया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कराया। आफ्टर द नेम ऑफ जयसिंह, आफ्टर द नेम ऑफ जयसिंह, जयसिंह के नेम पे ही दिस फोर्ट गेट इट्स नेम जयगढ़ फोर्ट। अब आप इसको जयगढ़ फोर्ट क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसका नेम कौन से किंग पर है? जयसिंह। इट हैज बिग गेट्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। जितने भी फोर्ट्स है ऑब्वियसली आपको पता है वहां पे कितने हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज गेट्स हैं एंड दे हैव स्मॉल पॉइंटेड नेल्स। ओके, इट्स वॉल आर क्वाइट थिक, और इसकी वॉल कैसी है? काफी थिक है, काफी ज्यादा मोटी है। कभी गए हो? हैव यू विजिटेड जयगढ़ फोर्ट? हाँ, सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस मनस? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहां का जयगढ़ फोर्ट का? अच्छा रहा आपका? हाँ, यू नो देयर इज अ बिग कैनन, यस, देखा आपने? जयगढ़ में बहुत ही फेमस, हमारे बहुत बड़ी सारी बिग कैनन है वो, है ना? कब यूज हुआ था उसका? आपने कब पढ़ा वहां जाके, उसको रीड किया वहां पे क्या क्या राइट हो रहा है या ओनली सिर्फ देखा? हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ वेपन्स, वेपन्स की भी वहां पे बेटा बहुत सारे वेपन्स है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं एंड और क्या है वहां पे? टेल मी। Yes, there is a museum. वहां पर म्यूजियम where we can see how the kings and queens how they can eat, वो कैसे eat करते थे उस टाइम पे, और how they were set ना, and what how their coat, उनका कोट कैसा था, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। You have to visit the Jaigarh Fort. Sit. Now next is what preparation would you make for mountaineering? अगर आप माउंटेनिंग करने जा रहे हैं तो what is the preparation? Check your answer with my answer. तो हमें क्या प्रिपरेशन करनी है? माउंटेन्स से जा रहे हैं, अब माउंटेन्स पे जाना, लिसन बेटा देखो, जब भी आप कोई जर्नी पे जाते हो तो भी तो प्रिपरेशन करते हो ना। अभी आपको शिमला घूमने जाना है तो आप प्रिपरेशन करोगे या नहीं? हाँ, तो अगर हमें कोई कश्मीर घूमने जाना है, अगर कोई कोल्ड प्लेस पे जाना है तो ऑब्वियसली आप अपने स्वेटर रखोगे, जैकेट्स रखोगे, शूज रखोगे, प्रिपरेशन तो करोगे ना। तो सेम अगर आप माउंटेनिंग करने जा रहे हो, माउंटेन्स पे क्लाइंब करने जा रहे हो, तो आप क्या प्रिपरेशन करोगे? फर्स्ट इज वी वुड कैरी एसेंशियल थिंग्स। हम अपने साथ एसेंशियल थिंग्स रखेंगे जो जरूरी चीजें हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, ये तो बहुत जरूरी है माउंटेन्स पे जाने के लिए, और यस, फूड कैन, वाटर बॉटल, डायरी, पेन, टॉर्च, टेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिक्वायरमेंट थिंग्स है, देन वी हैव टू कीप द थिंग्स विद अस। इतनी सारी एसेंशियल थिंग्स है जिसे हमें अपने साथ रखने हैं। एक्स हो गया है, शूज हो गए हैं, जो स्पाइक्स वाले शूज आते हैं ना वो यूज करने हैं, सन ग्लासेस लेना है, तो बहुत सारी रिक्वायर्ड थिंग्स है देन दैट वी हैव। ओके, नेक्स्ट वी वुड गेट और ब्लड प्रेशर चेक। और आपको क्या करना है? अपना ब्लड प्रेशर को चेक करना है या नहीं करना है? ऑब्वियसली, है ना?
practice walking and take knowledge about the difficulty which might come in the mountainous area. अब आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की, वहां पे किस किस टाइप की डिफिकल्टीज आती है वो आपको कलेक्ट करनी है। आपको पता होना चाहिए कि हम जिस भी माउंटेन पे जा रहे हैं वहां क्या क्या हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, और साथ ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वॉकिंग की, क्योंकि काफी ज्यादा आपको वॉक करना पड़ेगा। तो वी हैव टू प्रैक्टिस वॉकिंग। क्लियर? So this is your model test paper 4. Clear? Have you understood all the questions? Manas, समझ आ गए सारे? Okay. So do it in your desk work. If you not done it, do it, complete it, and learn all chapters regularly for your final exam. Final exams will be coming soon. Yes. So we have to prepare ourselves. अब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, लर्निंग करना है, सब कुछ। ओके, क्लियर? ओके, गुड बाय किड, Goodbye. टेक केयर।